નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શિક્ષા ભારતી ચેનલમાં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9માં જીએસીબી એટલે કે ગુજરાતી મીડિયમમાં ધોરણ 9 હિન્દી વિષય લઈશું. એમાં પહેલી જે કાવ્ય છે તે છે આરાધના. આરાધના આરાધના એટલે શું? પ્રાર્થના, પૂજા, અર્ચના, ઘણા બધા એના અર્થ થઈ શકે છે. મિત્રો, આજે આપણે એની પૂરી સમજૂતી જોઈશું અને સાથે સાથે તેનો સ્વાધ્યાય જે આપ્યો છે તેનું સોલ્યુશન આપણે દર વખતની જેમ કરવાનું છે. બરાબર? તમને અહીંયા પૂરેપૂરું ફૂલ સોલ્યુશન મળશે. મિત્રો, તમારે આ શિક્ષા ભારતી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાની રહેશે, લાઈક કરો અને મિત્રો સાથે ખૂબ શેર કરો. મિત્રો, 8મા ધોરણના બધા જ મોટાભાગનું આખું સિલેબસ સંપૂર્ણ રીતે સોલ્યુશન તમારા પાઠ્યપુસ્તક મુજબ થઈ ગયું છે. હિન્દીમાં પણ થઈ ગયું છે અને સંસ્કૃતમાં પણ મોટે ભાગે થઈ ગયું છે. તેમ છતાં કેટલાક જે ચેપ્ટર્સ જે કન્ટિન્યુ છે, હજુ પણ પ્રોસેસમાં છે, તે ધીમે ધીમે પણ આવી જશે. ધોરણ 9માં તમને ગુજરાતીનું, હિન્દીનું અને સંસ્કૃતનું 3 સબ્જેક્ટનું અહીંયા તમને જોવા મળશે. સોલ્યુશન, ફૂલ સોલ્યુશન તમને મળી જશે સ્વાધ્યાય સાથે. અને મિત્રો, સાથે સાથે તમને કેટલીક એક્ઝામ લક્ષીને ટિપ્સ પણ આપવામાં આવશે. 10મા ધોરણના એસએસના વિડીયો શરૂ થઈ ગયા છે મિત્રો, અને એટલા માટે તમારા જે પણ કોઈ મિત્રો બોર્ડની એક્ઝામ આપવાના છે, એટલે કે બોર્ડમાં છે, ધોરણ 10માં છે, તે લોકોએ પણ આમાં જોડાયેલા રહેવાનું રહેશે, જેથી કરીને તમને 10મા ધોરણના ગુજરાતીના, સંસ્કૃતના અને એસએસના દરેકે દરેક ફૂલ સોલ્યુશન સ્વાધ્યાય સાથેનું આખું વિડીયો તમને અહીંયા મળી રહેશે. મિત્રો, બરાબર છે? તમને કોઈ પણ પ્રકારની વધારાની અમે તમને મહેનત કરાવશું નહીં. તમારા જે સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્નો જવાબ આપેલા છે એમાંથી જ બોર્ડની પરીક્ષા લો કે પછી તમારી સ્કૂલની પરીક્ષા લો, 60થી 70% જેટલું આ સ્વાધ્યાયમાંથી જ આવતું હોય છે. મિત્રો, એટલા માટે તમારે આને વારંવાર જોતું રહેવાનું, મોડે કરતું રહેવાનું અને ધ્યાન આપવાનું છે. બરાબર? તો ચાલો મિત્રો, જલ્દીથી તમે નોટને પેન લઈને બેસી જાઓ. તમારી પાસે જો પાઠ્યપુસ્તક હોય તો પાઠ્યપુસ્તક લઈને તમે બેસી શકો છો, અને જો ન હોય તો દર વખતની જેમ તમારે પીડીએફને ડાઉનલોડ કરી દેવાની ગૂગલમાં જઈને. એમાંથી પણ તમને મળી જશે. બરાબર છે? તો ચાલો ત્યાર મિત્રો, આપણે શરૂ કરીએ. આરાધના. આરાધના એ સુંદર કાવ્ય છે. कौन से देना कवि? वसंत बापट. उनका जन्म हुआ है सन 1922 में और निधन हुआ 2002 में. श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है. आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था. पुणे आपकी कर्मभूमि है. राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं. व्यवसाय से प्राध्यापक रहे. आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है. सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी माने 11वीं दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं. प्रस्तुत प्रार्थना में यह जो आराधना है मित्रों, इसका जो साहित्य प्रकार है वह है प्रार्थना गीत. ठीक है, हमें याद रखना है. प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, बैरभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है. अनुदित माने अनुवाद किया हुआ है मित्रों. ठीक है, चलिए. देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना. क्या कहा गया यहाँ पर मित्रों? कवि कहते हैं कि मेरी यही एक प्रार्थना है. क्या प्रार्थना है? कि यह जो हमारा शरीर है, हमारा जो मन है, वह सत्य, शिव और सुंदर की आराधना करता है. उसी से ही आराधना होती है. लोग सच्चाई के मार्ग पर चले. क्या कहना चाहते हैं?
कि लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचें। यह है कवि की उच्च भावनाएं। आगे क्या कहते हैं मित्रों, देखिए, दुखियारों का दुख जाए, जो दुखियार है, जो दुखी है, उनका दुख जाए, है यही मनोकामना। यह एक प्रश्न है मित्रों, ध्यान में रखना है हमें। कवि की मनोकामना क्या है कि जो कोई इस संसार में दुखी है, मन से हो या शरीर से हो, उसका दुख हमें दूर करना है। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। अपनी संवेदना को जगाने की बात कर रहे हैं कवि यहाँ पर। कैसे? तो कवि कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें। यही तो है संवेदना मित्रों। दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। इसके साथ साथ कवि यह भी प्रार्थना करते हैं मित्रों। आगे कहते हैं कि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। पौरुष माने पुरुष नहीं, पौरुष माने पुरुषार्थ। साधना है एक। कैसी साधना है? जो दुर्बल है, जो सक्षम नहीं है, जिसका मनोबल दुर्बल है, उसको कैसे भी करके निराशा से ऊपर लाने के लिए उसे सहाय रूप होना चाहते हैं। वही है सही पुरुषार्थ, वही है सही पौरुषत्व। आगे कहाँ है? जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। क्या कहते हैं यहाँ पर कवि? सबके जीवन में नया प्रकाश, नई प्रेरणा, नई आशा, नया उत्साह जगाने की बात हो रही है। सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें। मनुष्य मनुष्य से प्रेम करे, मनुष्य मनुष्य की संवेदनाएं समझे, भावनाएं समझे। यही कवि की अभ्यर्थना है। सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें। कवि की यह भी प्रार्थना है। मित्रों, अंत में कहते हैं कवि कि भेद सभी अस्त होवे, किसी भी प्रकार का भेद ना हो। अस्त हो जाना माने डूब जाना, नष्ट हो जाना। यहाँ पर जो अर्थ दिया हुआ है वह है नष्ट हो जाना। कहते हैं कि वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। हम कैसे हो? मुक्त हो। और क्या चाहना रखनी है? बंधुता की। कवि क्या कहते हैं? उनकी एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? कि मनुष्य मनुष्य के बीच में सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, किसी से किसी भी प्रकार की दुश्मनी ना हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो जाए। सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें और हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करें, इच्छा करें, बंधुता की इच्छा करें, कामना करें। तो मित्रों, यही है इस काव्य का भावार्थ, यही है इस काव्य का अर्थ। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ज़रूर से समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की आपको डिफ़िकल्टी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया हुआ है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप पूछ सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे शब्दार्थ की ओर, यानी कि टिप्पणी, फिर जाएंगे स्वाध्याय की ओर। ठीक है मित्रों, चलिए। प्रार्थना माने निवेदन करना, भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक ईश्वर की मांगना। मांगल्य यानी मंगलकारी, नित्य यानी निरंतर, प्रतिदिन, हर रोज। आराधना माने पूजा, वेदना माने कष्ट, व्यथा,
दुख भी आ सकता है, दर्द भी आ सकता है मित्रों, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा कहा गया है तो ये लिख सकते हो। परख माने गुण दोष को निश्चित करने की परीक्षा। संवेदना माने अनुभूति, सहानुभूति। दुर्बल माने कमज़ोर। साधना माने उपासना, आराधना। अंतरंग माने शरीर के भीतरी अंग, मन, मस्तक। आस माने आशा, भरोसा, सहारा, कामना। मानवता माने मनुष्यता। आसना माने आराधना, भक्ति। धैर्य माने धीरता, धीरज, सब्र। अभ्यर्थना माने अनुरोध, विनती। अस्त माने ओझल, अंत या फिर नाश या फिर समाप्त भी कह सकते हैं। बैर माने दुश्मनी, शत्रु भाव। वासना माने कामना। चले मित्रों, अभी हम लोग देखेंगे स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एक मिनट मित्रों। पहला प्रश्न है यहाँ पर, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो जवाब आएगा मित्रों यहाँ पर, कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। उसके बाद है दूसरा प्रश्न मित्रों, आएगा यहाँ पर, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? कवि कहते हैं दुखी लोग दुखों से मुक्त हो, ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? तो जवाब में आएगा मित्रों, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? उत्तर आएगा मित्रों, कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। पांचवा प्रश्न है मित्रों, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? उत्तर आएगा, कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो। आगे का प्रश्न देखेंगे मित्रों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है प्रश्न? पहला है, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? उत्तर आएगा मित्रों, मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचें। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। दूसरा प्रश्न है मित्रों, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? उत्तर है मित्रों, कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख है। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती। वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। मित्रों, अभी तीसरा प्रश्न आएगा, कवि की क्या अभ्यर्थना है? उत्तर है मित्रों, कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग धीर वीर बने। चौथा प्रश्न है मित्रों, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? तो उत्तर आएगा मित्रों, संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद है। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। चलिए मित्रों, अभी हम देखेंगे निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। मित्रों, यहाँ पर यह जो प्रश्न है, आपको हमेशा एक बात
ध्यान में रखनी होगी बोर्ड में, और अभी 9th में भी। 9th भी तो अभी आपका बोर्ड ही है। तो क्या बात हमें याद रखनी है मित्रों, जब कभी भी आपको सविस्तार प्रश्न पूछा गया हो या फिर इस तरह की काव्य पंक्ति को समझाना है, तो सबसे पहले 2-3 लाइन जो है वो आपको याद रखनी होगी। क्या है वो? वह यह है कि मान लो कोई भी प्रश्न पूछा है या यहाँ पर आपको जैसे काव्य पंक्ति समझानी है, स्पष्ट करनी है, तो लिखना होगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति को आराधना काव्य में से लिया गया हुआ है, जिसके कवि है वसंत बापट। यह काव्य का साहित्य प्रकार है प्रार्थना गीत। इस तरह से आपको लिखना होगा। और यहाँ पर समाज में सभी मनुष्यों का दुख दूर हो, किसी भी प्रकार की भेदभाव की भावना न हो, सब एकजुट होकर रहे, एकता की भावना बनी रहे, सत्यम शिवम सुंदरम की भावना बनी रहे। इस तरह कवि ने इस काव्य में अपनी भावनाएं व्यक्त की है। तो मित्रों, इस तरह से थोड़ा शॉर्ट में 2-3 लाइन आपको शुरू में लिखनी होगी। क्यों लिखनी होगी? ताकि आपका मार्क्स जो है वो अच्छे से रैंक आ सके। मान लो आपका बड़ा क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, तो कम से कम आपको यह इतना लिखने से आपको आधा या 1 मार्क पूरा होने की पूरी गारंटी है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, फिर आप जवाब जो कुछ भी लिखें, लेकिन इसका पूरा मार्क्स आपको मिलेगा ही। इसलिए बोर्ड में भी लिखें और 9th में भी लिखें। ठीक है, जब कभी भी आपको परीक्षा में सविस्तार जवाब जब लिखना है या काव्य पंक्ति समझानी है, तो इतना लिखना ज़रूरी है, जिससे जवाब का जो इम्प्रेशन है वो अच्छा लगेगा, पढ़ने वाले को भी अच्छा लगेगा, और जो हम जब लिख रहे हैं तो सामने वाला यह समझ सके, माने आपके टीचर जो है वो समझ सके कि नहीं, ये जो बच्चा है उसे पूरी जानकारी है। ठीक है मित्रों, चलिए यहाँ पर दिया गया हुआ है देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्यम सुंदरम मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति आराधना काव्य से ली गई हुई है, जिनके कविश्री है वसंत बापट। इस काव्य का साहित्य प्रकार है प्रार्थना गीत। ठीक है, चलिए उसके बाद हम शुरू करेंगे जवाब का। कवि वसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि है। उनके चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले, उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो, लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचे। तो यह है इसका स्पष्टीकरण। दूसरा है भेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। तो यहाँ पर भी उस तरह से लिखना है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति को आराधना से लिया गया हुआ है, जिनके कविश्री है वसंत बापट। यह काव्य का साहित्य प्रकार जो है वह है प्रार्थना गीत। ठीक है, अभी हम लिखेंगे जवाब। आज संसार में वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं। ईर्ष्या द्वेष के कारण ऊंच नीच का अंतर बना है, इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण ये तरह तरह के भेद ही है। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी। तो यह है इसका उत्तर। अभी हम लोग देखेंगे काव्य पंक्तियों को पूर्ण करना है। तो मित्रों, वह तो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ ही है, फिर भी आपको स्क्रीन पर जो काव्य पंक्ति है वह पूर्ण दिखाई दे रही है। ठीक है, तो एक बार पढ़ के देखते हैं, चलिए। और यह काव्य पंक्ति जो है मुखस्थ करनी है। ठीक है, यानी कि यह पूरा काव्य जो है आपको मुखपाठ करना होगा। पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का आता है मित्रों। ठीक है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है,
फिर डॉट डॉट करके पौरुष की साधना। तो क्या आएगा मित्रों, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। ठीक है, यह पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति में दिया गया हुआ है, जीवन में नवतेज हो डॉट डॉट बंधुता की कामना, यानी जीवन में नवतेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, भेद सभी अस्त होवे बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। अंत में क्या कहा है, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। चल मित्रों, अभी हमें अंत में जो दिया गया हुआ है वह है विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। क्या है विरुद्धार्थी शब्द में, दुख माने सुख आएगा, जीवन तो मृत्यु, सत्य असत्य, सुंदर असुंदर, अस्त और आएगा इसका अर्थ है उदय। मित्रों, हमें यहाँ पर भी कहा गया हुआ है विद्यार्थी प्रवृत्ति में कि पठित प्रार्थना गीत को कंठस्थ कीजिए। ठीक है, तो मुखस्थ करना है, इसे हमें मुखपाठ करना है। तो मित्रों, यहाँ पर आपका जो स्वाध्याय है काव्य पंक्ति काव्य 1 का वह पूर्ण होता है। आप शिक्षा भारती से जुड़े रहिए, इस तरह से ही आपके लिए वीडियो आ रहा है। ठीक है मित्रों, नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।